دوسری جانب برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی متاثر ہوئی ہے۔ مرغی کا گوشت 6 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 606 روپے ہو گئی ہے۔ زندہ برائلر کے دام میں 4 روپے فی کلو اضافہ ہوا۔ زندہ برائلر ہول سیل 399 روپے، پرچون ریٹ 404 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈے 2 روپے فی درجن مہنگے ہوئے، قیمت 292 روپے مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی بات کریں تو انڈوں کی پیٹی 8640 روپے کی فروخت ہو رہی ہے۔ عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات سے آگاہ کریں عبدالقادر۔ آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نقطہ میں جاری کیا گیا اس میں برائلر کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ گزشتہ روز بھی برائلر کی قیمت میں اضافہ کیا گیا تھا 18 روپے کا، آج مزید 6 روپے فی کلو تک اضافہ کیا گیا، کیونکہ سپلائی جو ہے بدستور وہ بہتر نہیں کی جا سکی، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں گیپ آج بھی وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 600 روپے فی کلو سے مرغی کا گوشت مہنگا کر کے 606 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ اسی طرح زندہ برائلر کے دام 4 روپے تک بڑھا دیے گئے ہیں۔ ہول سیل زندہ برائلر کی قیمت 399، جبکہ جو پرچون زندہ برائلر کی قیمت ہے وہ 404 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتیں جو ہیں اب وہ انتظامیہ کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں۔ انتظامیہ صرف سرکاری نرخوں میں جاری کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، جبکہ برائلر کی سستے داموں فروخت کو یقینی بنانے کے لیے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ہے۔ انڈے وہ آج مزید 2 روپے فی درجن تک مہنگے کیے گئے۔ گزشتہ روز بھی 2 روپے فی درجن مہنگے کیے گئے، تو روزانہ کی بنیاد پر انڈوں کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ 290 سے قیمت بڑھا کر آج 292 روپے فی درجن مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8640 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے، جبکہ فی انڈا شہریوں کو 25 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ مارکیٹ میں جو انڈے ہیں وہ 300 روپے فی درجن تک شہریوں کو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو دکاندار ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ ابھی موسم سرما آیا نہیں، اور گرمیوں کے موسم میں 300 روپے درجن تک انڈوں کی قیمتیں پہنچ چکی ہیں، اور سپلائی وہ بھی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے قیمتیں وہ غیر معمولی سطح پر ہیں۔ اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کو وہ کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر بے بس دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جو مہنگائی مافیا ہے وہ برائلر کی قیمتیں اور انڈوں کی قیمتیں وہ مسلسل بڑھا رہا ہے۔ شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عبدالقادر۔ خبر یہ بھی ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا عوامی شکایات کا نوٹس میٹرو بس اور میٹرو ٹرین میں سفر کر کے عوام سے مسائل بارے دریافت کیا گیا۔ ڈی سی آفس سمیت دیگر سرکاری اداروں کا بھی دورہ کیا گیا ہے، یہ رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی لاہور شہر کے دورے پر نکل پڑے۔ میٹرو بس اور میٹرو ٹرین میں سفر کیا، مسافروں سے سفری سہولتوں کے بارے دریافت کیا۔ مسافروں نے میٹرو بس کے اے سی خراب ہونے سمیت دیگر شکایات کیں۔ وزیر اعلیٰ نے میٹرو بسوں کی حالت بہتر بنانے کا حکم دیا۔ محسن نقوی نے طلبہ کو مفت سفری سہولت کے لیے سیکرٹری ٹرانسپورٹ کو سمری بھجوانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ میٹرو ٹرین کے انارکلی اسٹیشن پہنچے، جہاں واش رومز بند، پانی غائب، ٹوکن والی مشینیں خراب تھیں۔ محسن نقوی نے سیکرٹری ٹرانسپورٹ کو فوری طور پر طلب کیا۔ میٹرو ٹرین کے علی ٹاؤن اسٹیشن پر بھی مسافروں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ محسن نقوی نے میٹرو کارڈ کو آن لائن یا کریڈٹ کارڈ سے چارج کرنے کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے ڈی سی آفس لاہور میں رجسٹری برانچ کا دورہ کیا، جہاں عملہ غائب پایا گیا۔ سب رجسٹرار داتا گنج بخش ٹاؤن آفس میں عملے کی عدم موجودگی پر برہمی کا اظہار کیا۔ سب رجسٹرار بھی وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی آمد کے بعد دفتر پہنچے۔ وزیر اعلیٰ نے عملے کو دفتری اوقات کی پابندی کرنے کا حکم دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب پبلک لائبریری بھی گئے اور ریڈنگ ہال کی تزئین و آرائش کا معائنہ کیا۔ 90 روز کی آئینی مدت میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحریک انصاف نے نگران وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے خط میں مشترکہ مفادات کونسل کے مردم شماری بارے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا بھی اندیا دے دیا ہے۔ پارٹی کی کور کمیٹی کی اہما پر پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی جانب سے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو خط میں آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا گیا۔ خط میں کہا گیا کہ قبل از وقت اسمبلی تحلیل کی صورت میں آئین 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کا حکم دیتا ہے۔ آپ انتخابات کے بروقت انعقاد کو یقینی بنائیں۔ خط میں بتایا گیا کہ تحریک انصاف مردم شماری کے حوالے سے مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مردم شماری کے نتائج کی تاخیر سے منظوری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے معاملے کو انتخابات میں التوا کا بہانہ ہرگز نہیں بنایا جا سکتا۔ انتخابات کی ساکھ کے لیے لازم ہے کہ فریقین کو انتخابی مقابلے کے لیے مساوی میدان فراہم کیا جائے۔ موجودہ حالات میں آپ کا منصفانہ طرز عمل جمہوری اقدار پر عوام کے اعتماد میں پختگی اور تقویت کا موجب بنے گا۔ نگران وزیر اعظم سے کہا گیا کہ تحریک انصاف آپ کو سونپے جانے والے اس عظیم فریضے کی انجام دہی میں اپنے تعاون کا یقین دلاتی ہے۔ خط میں نگران وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر انوار الحق کاکڑ کو مبارکباد بھی دی گئی۔
साबिक ज़िला पंजाब परवेज़ इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त और हाई कोर्ट ने सीनियर वकील की अदम दस्याबी के बायस समाअत मुलतवी कर दी है। IG पंजाब, IG जेल खनाजात और होम सेक्रेटरी को जुर्माना करने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर कार्रवाई भी मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने हुक्म इम्तना में तोसी कर दी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की नज़रबंदी का मामला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर नहंग ने अदालत को बताया कि परवेज़ इलाही की नज़रबंदी खत्म हो चुकी, जिसके बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है, लिहाजा अदालत दरख्वास्त निपटा दे। परवेज़ इलाही की लीगल टीम के मेंबर ने अदालत को आगाह किया कि परवेज़ इलाही केस में सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, लिहाजा कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर कार्रवाई 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानब स्पेशल सेंटर कोर्ट की जानब से IG पंजाब, IG जेल खानाजात और होम सेक्रेटरी को जुर्माना करने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत हुई। जस्टिस राहील कामरान शेख ने अपील पर कार्रवाई 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर ने दलाइल में कहा कि स्पेशल सेंटर कोर्ट ने IG पंजाब और IG जेल को 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना किया, जो गैर कानूनी है, लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट स्पेशल सेंटर कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे। अदालत ने इस केस से मुतल्लिक तमाम दरखास्तों को यकजा करने की हदायत की और स्पेशल सेंटर कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करने के फैसले में 18 अगस्त तक तोसी कर दी। परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही समेत दीगर के खिलाफ गुजरात के तरक्याती मनसूबों में करप्शन का मामला सामने आ गया। एहतसाब अदालत ने मोनिस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल असगर रहमान को खालिद महमूद चट्ठा का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। गुजरात की मुख्तलिफ स्कीमों में करप्शन का मामला परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के साथ शरीक मुलजिमान को नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने मुकदमे की समाअत की। अदालत ने सुहेल असगर रहमान को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया, जबकि शरीक मुलजिम इशफाक अहमद और नईम इकबाल को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ ने मुलजिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सुहेल असगर रहमान के खिलाफ करप्शन के ठोस शवाहिद मौजूद है। मुलजिम सुहेल असगर रहमान तरक्याती मनसूबों की मद में अफसरान से किक बैक और रिश्वत की रकम इम्तियाज नामी शख्स को देता था। मुलजिमान के वकील राना फारूक अमीन ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। वकील ने बताया कि सुहेल असगर रहमान को मोनिस इलाही से ताल्लुक की बुनियाद पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुलजिमान पर सरकारी ठेकों में मुबैना किक बैक्स वसूल करने का इल्जाम है। कैमरा टीम के हमरा नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। 3 MPO नज़रबंदी के खिलाफ पेश की अदालती इजाज़त की पाबंदी का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर की अपील मंजूर करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस मिर्ज़ा वक़ास रऊफ़ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने डिप्टी कमिश्नर की अपील पर समाअत की है। सरकारी वकील ने बताया कि आईन और कानून बगैर वजह बताए नज़रबंदी का इख्तियार देता है, जिसे ख़त्म या मुअत्तल नहीं किया जा सकता। नज़रबंदी का डिप्टी कमिश्नर का स्वाबदीदी इख्तियार ख़त्म हुआ तो इसकी अफादियत और अहमियत भी ख़त्म हो जाती है, लिहाजा अदालत 3 MPO के तहत नज़रबंदी के इक़दाम को मशरूत करने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने इब्तदाई दलाइल मुकम्मल होने पर नज़रबंदी से कबल पेश की इजाज़त का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। दूसरी जानिब हसान न्याजी की गिरफ्तारी में अहम पेशरफ सामने आई है। ज़राए के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम अगले हफ्ते हसान न्याजी को लेने लाहौर से कोयटा जाएगी। हसान न्याजी का नाम A+ कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुलज़मान को A+ और A कैटेगरीज का नाम दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम अगले हफ्ते हसान न्याजी को लेने लाहौर से कोयटा जाएगी और DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर भी टीम के हमरा कोयटा जाएंगे। पुलिस के मुताबिक हसान न्याजी को एबटाबाद पुलिस ने कोयटा पुलिस के हवाले किया। हसान न्याजी को लाहौर मुंतकिल करने के लिए महकमा दाखिला ने ख़त लिख दिया। लाहौर के थाना सरवर रोड समेत दीगर थानों में हसान न्याजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। अब आपको बताएं कि सब्जियों फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियां मजीद महंगी हो गई। अदरक 1100, लहसुन 560, प्याज 90 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। टींडे 200, करेले 140, भिंडी 120, आलू 100 रुपये किलो में दस्तयाब है। फलों की बात करें, खुबानी 460, आड़ू 350, आम 280, सेब 250 रुपये में दस्तयाब हैं। मजीद क्या भाव ताव हैं, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, कहिएगा अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी महकमे जारी किए गए उसमें 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया और प्याज कीमत में गुज़िश्ता 4 रोज से मुसलसल इजाफा देखने को मिला। आज भी मजीद 2 रुपये का इजाफा किया गया और 5 रुपये प्रति किलो सरकारी रेट में प्याज दर्ज की गई है, लेकिन मार्केट में चावल का प्याज जो 80 से 90 रुपये प्रति किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह दीगर सब्जियाँ जिन कीमतों में इजाफा हुआ उसमें लीमू 5 रुपये महंगा करके 25 ग्राम दर्ज किया गया। मार्केट में लीमू
150 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा। आलू 1 रुपए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नई निगरान वफाकी हुकूमत ने भी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए तक इजाफा हुआ। पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया, जबकि अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। नई निगरान वफाकी हुकूमत ने आते ही पेट्रोल धमाका कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल और डीजल 17.5 से 20 रुपए फी लीटर तक महंगा किया गया। पेट्रोल के निर्ख में 17 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 291 रुपए 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 20 रुपए फी लीटर बढ़ी। नई कीमत 294 रुपए 19 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। आवाम सर पकड़कर बैठ गए। कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, अब तो महंगाई का मजीद तड़का लग गया है। ये बहुत ही जुल्म हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि पहले 200 रुपये में हम सारा ड्यूटी पे भी जाते थे, फिर वापस भी आकर घरेलू काम भी कर लेते थे। लेकिन अब जो हो रहा है ना, उसके हवाले से अब रोज़ 400 का पेट्रोल लगता है। 200 बर्डन बढ़ गया मुलाजिम। गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया है इस कह लेंगे गवर्नमेंट ने। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ये बहुत कह लें कि कोई अनसर्टेन कंडीशन है, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है ये। आलमी मार्केट की तेजी के साथ साथ मुकामी मार्केट में महंगे होते डॉलर के सामने निगरान हुकूमत भी बेबस हो गई और IMF से तयशुदा फार्मूले के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गयी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। रेलवे इंतजामिया ने भी किराए में इजाफा कर दिया है। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम ने महंगाई के झटके जारी हैं। गरीब की सवारी रेलगाड़ी भी मजीद महंगी हो चुकी है। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 10% इजाफा कर दिया। तमाम मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों की तमाम कोचेज़ के किराए में इजाफा किया गया है। फ्रेट किरायों में भी 5% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जबकि किरायों में इजाफे का इतलाक 17 अगस्त से होगा। बैनुल-अक़वामी मार्केट में LPG के रेट बढ़ने की देर है कि मार्केटिंग कंपनियों ने ओगरा के नोटिफिकेशन का भी इंतजार ना किया और कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। 2 रोज़ में फ़ी किलो कीमत 20 रुपये तक बढ़ी है। महंगाई की चक्की में पिस रहे अवाम को एक और झटका। ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर ही LPG की कीमत बढ़ा दी गई। मार्केट कंपनियों ने कीमत में फ़ी किलो 10 रुपये इजाफा कर दिया। LPG की कीमत 210 से बढ़कर 220 रुपये फ़ी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 120 रुपये, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 450 रुपये बढ़ गई। घरेलू सिलेंडर अब 2495 रुपये की बजाय 2615 रुपये में मिलेगा। कमर्शियल सिलेंडर 9580 रुपये के बजाय 10030 रुपये में फरोख्त होगा। सिर्फ 2 रोज में फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये इजाफा हुआ। महंगाई के मारे अवाम चकरा कर रह गए हैं। कहते हैं हर चीज ही पहुंच से दूर होती जा रही है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में कीमत $92 फी मैट्रिक टन बढ़ी, जिसके बाद LPG का रेट 464 से बढ़कर $556 फी मैट्रिक टन तक पहुँच गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम बिला वास्ता और बिल वास्ता मुतासिर हुए हैं। इजाफे का बोझ मेट्रो बस पर भी पड़ने का अंदेशा है। सूबा भर में जारी तरक्याती कामों के रेट्स में होशरुबा इजाफा करने की तैयारी कर ली गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पे दर पे इजाफा, सस्ती और मयारी ट्रांसपोर्ट को पुराने किराए पर चलाना हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ मेट्रो बस पर भी पड़ने का अंदेशा। मेट्रो बस से चलाने वाले कॉन्ट्रैक्टर वीडा मीजा ने भी किराए बढ़ाने की इस्तदा कर दी। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने मेट्रो बस के किरायों में रद्दोबदल की तैयारी शुरू कर दी। स्टेज वाइज किराया 50 रुपए तक ले जाने की तजवीज तैयार। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी पंजाब हुकूमत को किराए बढ़ाने की इस्तदा करेगी। निगरान पंजाब कबीना की जानिब से किराए बढ़ाने या न बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब सूबे भर में जारी तरक्याती कामों के रेट्स में होशरुबा इजाफा करने की तैयारी कर ली गई। कॉन्ट्रैक्टर्स ने रिवाइज्ड PC1 बनाने की भी इस्तदा कर दी। पंजाब हुकूमत को रवां माली साल के बाई एनुअल के नए रेट जल्द जारी करने की इस्तदा कर दी। महकमा P&D ने नए रेट्स के हवाले से वर्किंग पेपर तैयार करना शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर तैयार करदा वर्किंग पेपर के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर की लागत में 24% तक इजाफा होगा। सड़कों, पुलों और अंडरपासिस की तामीराती लागत में 20% तक इजाफा होगा। महकमा इनहार से मुतालिका स्कीमों में 18% तक इजाफे की मंजूरी ली जाएगी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और लोकल गवर्नमेंट की स्कीमों में 16% तक इजाफा होगा। तामीराती लागत में इजाफे की मंजूरी का इख्तियार मुतालिका मजाज अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा। मुतालिका अथॉरिटीज को रिवाइज्ड PC1 मंजूर करवाने की भी जरूरत न होगी। कैमरा टीम के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
दूसरी जानिब महंगाई ने सोने की चमक धमक को भी गिरा दिया है। आलमी मंडी में सोना सस्ता होने के बावजूद मुकामी सराफा मार्केटों में सोना मुसलसल महंगा होने का सिलसिला जारी है। 1.5 साल में सोना 92,350 रुपये तोला तक महंगा हुआ है। डॉलर की कदर बढ़ने के साथ साथ सोना भी आसमान को छूने लगा। अप्रैल 2022 में आलमी मंडी में सोना $1925 फी औंस था, जो $21 कमी के बाद अगस्त 2023 में $1904 फी औंस की सतह पर आ गया। मुकामी सराफा बाजारों में अप्रैल 2022 में 24 कैरात सोना 1,30,950 रुपए तोला था, जो मुसलसल महंगा होकर अगस्त 2023 तक 2,23,300 रुपए तोला हो गया। इसी तरह 22 कैरात का सोना 1,20,000 से बढ़कर 2,04,650 रुपए से तजावज कर गया। 21 कैरात सोने के दाम भी 1,14,000 से बढ़कर 1,95,350 रुपए से तजावज कर गए। इसी दौरानी में चांदी की कीमत 1,525 से बढ़कर 2,770 रुपए तोला हो गई। सराफा एंड ज्वेलर्स का मौक़िफ़ है कि डॉलर ने हर किस्म के कारोबार को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। पाकिस्तान की सराफा मार्केट अदम इस्तेहकाम का शिकार है। डॉलर ने आलमी मंडी में सोने की गिरती कीमतों के बरक्स मुकामी सराफा बाजारों को सुनसान कर दिया है। सोना अब अमीर की पहुँच से भी बाहर होता जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आफ्टर शॉक्स के जारी हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 20 से 30% तक इजाफा कर दिया, जबकि महंगाई ने अवाम के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। नया सियासी सीजन अवाम की जिंदगी अजीरन गरीब के लिए रिलीफ खा बन गया। डीजल की कीमत 20 रुपए फी लीटर बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आ गए। किरायों में 20 से 30% इजाफा। लारी अड्डे से दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिर जायद किराया अदा करने पर मजबूर हैं। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1800 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए मुकर्रर। मुजफ्फराबाद का किराया 2500 रुपए की बजाय 2900 रुपए वसूल किया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान का किराया 2200 से बढ़कर 2500 रुपए हो गया। रजाना का किराया 800 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। शोरकोट का किराया 200 रुपए इजाफे के साथ 1400 रुपए हो गया। लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिरों ने बताया कि ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। 50 रुपए से 300 रुपए तक इजाफा किया गया है। मैं बखर जा रहा हूँ, पहले किराया था 2150, अब 2250 है। पहले किराया घट सी ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਮ मर गई है गरीब। ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ने का मामला गोल करके कहते हैं किराए जरूर बढ़ाएंगे, मगर अभी पुराना किराया ही वसूल किया जा रहा है। जब डीजल बढ़ता है ना तो गाड़ी की हर चीज़ बढ़ती है, ट्यूनिंग ये वो हर चीज़। अभी वो पुराने किराए सवारी अफोर्ड नहीं कर सकती तो नया किराया कहाँ से देगी। तो लाजमी डीजल बढ़ा है तो किराए बढ़ेंगे, 1-2 दिन बाद बढ़ेंगे। हमारा तो किराया भी वही चल रहा है, हमने किराया नहीं बढ़ाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान आने को तैयार है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ राहिल अली, लाहौर न्यूज़। जनरल अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर मियां हनीफ की मुअत्तली का ये मामला है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की मुअत्तली के इक़दाम की मज़म्मत की गई। ज़िला पंजाब से मुअत्तली की वजूहात पर शफाफाना तहकीकात करने और इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने हफ्ता के रोज़ लाहौर जनरल अस्पताल का अचानक दौरा किया। इसी दौरान ऑर्थो ऑपरेशन थिएटर का भी विजिट किया और मरीजों की शिकायत सुनने के बाद हड्डी वार्ड के हेड प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ को मुअत्तल कर दिया। इस पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जनरल अस्पताल के सदर डॉक्टर हसीब थंड ने एडमिन ब्लॉक में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर हसीब थंड ने कहा कि प्रोफेसर हनीफ का कोई मुतबादिल नहीं है और ये पंजाब का वाहिद अस्पताल है जहाँ स्पाइन की सर्जरी होती है। स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स एक शफीक उस्ताद से महरूम हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर हनीफ की मुअत्तली पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दें। ये वो डिपार्टमेंट है जो पंजाब में इस टाइम सबसे ज़्यादा सर्व कर रहा है और इस डिपार्टमेंट को विक्टिमाइज किया गया है, इस डिपार्टमेंट को पोलिटिसाइज किया गया है। और हम मुतालबा करते हैं, यहाँ पे हम मुतालबा करते हैं कि एक गैर जानिबदार इंक्वायरी की जाए और उस इंक्वायरी में सारे फैक्ट्स और फिगर हम प्रोवाइड करेंगे और उस इंक्वायरी के जो नतीजे होंगे वो हम तस्लीम करने के लिए राजी होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद यंग डॉक्टर्स का कहना था कि स्पाइन सर्जरी मुश्किल मरहला है, इसका केस लेट होता है। हम तमाम पैरामेडिकल स्टाफ भी इस इक़दाम की मजम्मत करते हैं। ऑर्थोपेडिक वार्ड के पास इमरजेंसी के अंदर सिर्फ एक ऑपरेशन थिएटर है। मुझे आप बताएं कि जब इतना पेशेंट बर्डन होगा, इतना लोड होगा, तो डॉक्टर्स एक ओटी के अंदर जहाँ पे एक टेबल है, एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली सैचुरेशन होगी। और जब सैचुरेशन होगी तो ना सिर्फ इसके कि आपको आके यहाँ पे डॉक्टरों के साथ बैठ के इन चीज़ों का हल निकाला जाए, आपने एक दर्द दिल रखने वाले प्रोफेसर जिनकी काविशों से ऑर्थोपेडिक वार्ड पूरे पाकिस्तान की जीनत बना हुआ है, उनको यहाँ से हटा दिया। डॉक्टर हनीफ साहब ने अपनी कोशिशों से एक बोन बैंक
जो कि पहले किसी के पास नहीं था। अपनी कोशिशों से अपने ही फंड से एक बोन बैंक यहाँ पे कायम किया है। उसमें हमारे पास बोन का स्टॉक यानी हड्डियों का स्टॉक होता है, जो कि पंजाब में किसी भी जगह पूरे पाकिस्तान में अगर किसी को ज़रूरत हो यहाँ से हमारे शोबे से लेके जाते हैं। ये फैसिलिटी किसी के पास नहीं है। ये प्रोफेसर हनीफ साहब ने अपनी तरफ से और अपनी कोशिशों से यहाँ पे कायम की है। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि हमें क्या ही खुशी होती अगर वज़ीर आला पंजाब यहाँ डॉक्टर मुअत्तल करने के बजाय पार्किंग प्लाजा का इफ्तिताह करने आते। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने अस्पतालों की अपग्रेडेशन करने और हताई डॉक्टरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारों की पीएमए ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के अस्पतालों के दौरों को बेसूद करार दे दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को मुअत्तल करने के बजाय अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर काम किया जाए। अगर उनको इसके साथ था ही ऑर्डर्ड ओवर देयर कि वहाँ पे एसी लग जाए, वहाँ पे ये निज़ाम ठीक हो जाए, ईंटों के साथ जो बिस्तर हैं वो बेहतर हो जाए। जब उन्होंने विज़िट किया तो नन वॉज डन ओवर देयर। वो आपने एमएस भी तब्दील कर दिया, वहाँ का प्रोफेसर भी आपने तब्दील कर दिया, लेकिन वहाँ पे जिस शख्स ने काम करवाना था, और हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमेशा ये समझते हैं कि ये जिम्मेदारी बाबुओं की है, सेक्रेटेरिएट की है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने जंग में अगवा के बाद कत्ल होने वाले डॉक्टर उमर रफीक के मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि मकतूल डॉक्टर की अहलिया को नौकरी दी जाए। 4 पुलिस एहलकार कि जिन्होंने एक मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर उमर रफ़ीक साहब को जंग में अगवा किया, बावर्दी होने के साथ अगवा किया और फिर बहुत ही बेईमाना तरीक़ा से उनको शहीद कर दिया। हम मौजूदा हुकूमत को अगर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार करार नहीं भी देते तो भी हम समझते हैं कि इट इज़ द स्टेट फेलियर। सदर पीएमए ने सूबे भर में अताई डॉक्टरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का भी मुतालिबा किया। एलडीए की गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। शोबा टाउन प्लानिंग जोन 2 का ऑपरेशन हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद इमलाक, जुज़वी मिसमार और सरबमहर कर दी गई हैं। ऑपरेशन की सरबराही डायरेक्टर टाउन प्लानिंग असद-उज़-ज़मान ने की है। शोबा टाउन प्लानिंग जोन 2 ने जाज़ेब ब्लॉक इकबाल टाउन में गैर कानूनी इमारत को जुज़वी मिसमार कर दिया। बंद रोड पर गैर कानूनी तमीरात को मुकम्मल तौर पर गिराया गया। बैंक रोड पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया बैंक सरबमहर किया गया। मुल्तान रोड पर ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन के करीब गैर कानूनी तौर पर की जाने वाली शटरिंग मिसमार कर दी गई है। निगरान ज़िला पंजाब ये कहते हैं कि तरक्की पुलिस अफसरों का हक है जो उन तक पहुंचाया गया है। तवक्को है कि तरक्की पाने वाले अफसरान अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के साथ पुलिस अफसरों को प्रमोशन रैंक लगाए। पुलिस अफसरों की एडिशनल आईजी और डीआईजी के ओहदे पर तरक्की। वज़ीर आला ऑफिस में पुलिस अफसरों को बैजेस लगाने की तकरीब। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के साथ पुलिस अफसरों को प्रमोशन रैंक लगाए। पुलिस अफसरों के अहले खाना को भी बैज लगाते हुए स्टेज पर मधु किया गया। एडिशनल आईजी के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में मकसूदुल हसन, अब्दुल करीम, मिर्जा फारान बेग शामिल। इमरान अरशद, मोहम्मद अदरीस अहमद, मोहम्मद वकार अब्बासी और मोहम्मद कामरान खान भी एडिशनल आईजी बन गए। सुहेल जफर चट्ठा, अली नासिर रिजवी, मोहम्मद अयाज सलीम, वकास हसन को डीआईजी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तौसीफ हैदर, कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक और मुंतजिर मेहदी को भी डीआईजी का रैंक मिल गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तरक्की पाने वाले अफसरों को मुबारकबाद दी और कहा कि तरक्की पुलिस अफसरों का हक है जो इन तक पहुँचाया गया। तरक्की के लिए आईजी पंजाब ने बहुत मेहनत की, चीफ सेक्रेटरी ने भी साथ दिया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने भी पुलिस अफसरों को मुबारकबाद दी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस अफसरों की तरक्की के लिए जाती दिलचस्पी ली। तकरीब में एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, सीसीपी और लाहौर, एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट, एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी हेडक्वार्टर्स और मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नौमान ने कहा है कि शोबा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का लेस्को का कारकर्दगी में मरकजी किरदार है। लेस्को सिस्टम की कैपेसिटी 13,813 मेगावाट तक है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नौमान का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का दौरा। लेस्को चीफ शाहिद हैदर और दीगर अफसरान ने 2022-23 के मनसूबे पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन बीओडी लेस्को को पेपरा रूल्स और एसओई एक्ट पर भी ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज मियां मोहम्मद नौमान ने कहा कि लेस्को सिस्टम की कैपेसिटी 13,813 मेगावाट तक है। लोड शेडिंग का मसला एनटीडीसी के सिस्टम की वजह से है। एनटीडीसी ने बड़ा वाज़ेह बता दिया कि हम आपको 4,900 से ज़्यादा मेगावाट से ज़्यादा हम आपको नहीं, क्योंकि उनके सिस्टम में गुंजाइश नहीं है।
जो सिस्टम से लेस्को का जो इंस्टॉल सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सिस्टम है, उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है, लेकिन आप इस बात को समझें कि उनका जो सिस्टम है वो मुतहम्मिल नहीं है कि वो आपको 5000 मेगावाट से ज़्यादा आपको सप्लाई दे सके। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद मान ने मजीद बताया कि लेस्को के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड करके 132 kV पर मुंतकिल कर दिया गया है। जल्द पूरे रीजन में इंसुलेटेड वायर्स लगाकर लटकते तार भी क्लियर कर दिए जाएंगे। अपना पूरा जो सिस्टम है वो 66 जो kV जो लाइंस हैं, जो नेटवर्क है, उससे बढ़कर हम 132 kV जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके ऊपर हमने कन्वर्ट कर दिया। और ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि जो पूरे पाकिस्तान के अभी किसी डिस्को ने ये टोटली इस टारगेट को अचीव नहीं किया। हाफिज मियां मोहम्मद मान का कहना था कि लेस्को स्पोर्ट्स में भी भरपूर ताउन किया जाएगा। इस मौका पर चीफ इंजीनियर PMU ताहिर म्यू, एडिशनल चीफ इंजीनियर अब्बास अली समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा पाकिस्तानी निजात कारोबारी शख्सियत डॉक्टर मुबशर चौधरी कहते हैं कि जब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सरमाए, जायदाद और कारोबार को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा, कोई भी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगा। पाकिस्तानी निजात कारोबारी शख्सियत डॉक्टर मुबशर चौधरी ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तारिकीन वतन को पाकिस्तान में सरमायाकारी में मसाइल का सामना है। पाकिस्तान में साइबर क्राइम और फराड की वजह से मुझ समेत बेशुमार ओवरसीज पाकिस्तानी इंसाफ के मुतलाशी हैं। जब तक ओवरसीज पाकिस्तानियों और दीगर गैर मुल्की सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं होगी। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर मुबशर चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अमरीका के साथ मुंसलिक है। अगर हम अपना फोकस अमरीका पर रखें और बिजनेस लेने को तरजीह दें तो हम कामयाब हो सकते हैं। अमेरिका के जो बायर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो इस चीज़ से गाफिल हैं कि ये 90% काम पाकिस्तान में हो रहा है। अब पहले बात करते हैं जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सियालकोट में बैठ के इसको 90% प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके आगे जर्मन्स को बेच रहे हैं। अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा का कहना था कि पाकिस्तान आलाते जराही एक्सपोर्ट करने वाले बड़े मुमालिक में शामिल है। अमरीका में आलाते जराही की सबसे बड़ी मार्केट मौजूद है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।